Hello everyone, welcome to the first lecture of inverse trigonometric function. Before this lecture, we have studied the chapter function and you have studied 10 lectures of the chapter function. And I think this chapter is also related to the previous chapters. Just we have studied inverse function. In the inverse function, we have studied that if a function is a 1 1 and onto, if function is bijective, 1 1 and onto can also be said as bijective function. So if a function is a bijective function, then and only then we can find the inverse of that function. That is the basic, you can say that very important point of finding the inverse of a function. And another thing is that we have also studied that if a function f is 1 1 and onto and f is defined from a to b, then its inverse f inverse is defined from b set to a set. And we have also studied the definition of the inverse function, that if alpha comma beta belongs to f, then beta comma alpha belongs to f inverse for every alpha comma beta. So these are some basic highlights of the chapter function and the inverse function. Okay, now we are going to study inverse trigonometric function, and as we know this thing, that a function is called trigonometric function, which are basically sin x, cos x, tan x, cosec, cot and sec x. Okay, so these are six trigonometric function, and it's their domain and the range. So first we study sin x function in the class 11th, that is called trigonometric function, and that is number 1, that is called as f is a function from real number to -1 to +1, where this is called the domain of the function and this is called codomain. And you can say in this case I am taking at a 1 1 onto. So codomain is equal to range in the case of onto. So this is also the range of sin x function. So if I write f is a function from real number to -1 to +1, where f of x is equal to sin x, then if I say that find the inverse of this function, then the main question arises, that is this function 1 1 and onto both? So first we can discuss about its 1 1 and onto by using its graph, and we can check it very easily. तो sin x का ग्राफ कैसा होता है, एक बार बना के देखते हैं. तो आपको पता होगा कि sin x का ग्राफ, अभी तक मैं बार बार जो है वो बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए. ये ग्राफ जो है वो किस फंक्शन का है, जो फंक्शन रियल नंबर से लेके -1 टू +1 डिफाइंड है, और sin x फंक्शन का ग्राफ है. ठीक है ना. तो यदि एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है, इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है इस फंक्शन का इनवर्स निकालना? तो फंक्शन का इनवर्स तो तभी निकलता है ना जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो. तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? सो फॉर द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक 1/2 ले लेता हूँ और एक लाइन खींच देता हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए. दिस इज एक्चुअली y इक्वल टू 1/2 लाइन, और ये ग्राफ को जो है वो मल्टीपल टाइम्स कट कर रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि sin x इक्वल टू 1/2 के जो है ना वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको, है ना. sin x इक्वल टू 1/2 का कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइटली मेनी. दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 6
n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे इसका सॉल्यूशन लिखते थे हम लोग, है ना, आपको याद होगा। तो यहाँ से x की जो है ना बहुत सारी वैल्यू आती है। पहले यदि मैं 0 पुट करूं तो π/6 आ जाएगा, यदि मैं 1 पुट करूं तो 5π/6 आ जाएगा, और इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको पता भी होगा यहाँ पे π/6 होता है, यहाँ जो है वो 5π/6 होगा, जहां पे इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। सो यू कैन से दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x द sin x becomes इक्वल। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 नहीं है। π/6 इसके अंदर इनपुट करूं या 5π/6 इनपुट करूं sin x में, sin π/6 भी 1/2 होता है, sin 5π/6 भी 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स x के यदि हमारे पास गिवन हो तो उसका इमेज सेम हो जाता है, दैट मीन्स वो बराबर हो जाते हैं। एंड इवन नॉट ओनली फॉर 2, इट इज इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जिसके लिए साइन जो है वो 1/2 हो जाता है। तो ये फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन है। साइन एक्स इज ए मेनी वन फंक्शन, hence its inverse does not exist। तब तो चैप्टर यही खत्म हो गया, है ना, हो गया खत्म। जब हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते साइन एक्स का या कॉस एक्स का, क्योंकि सभी फंक्शन आपका जो ग्राफ है उसमें आपने देखोगे तो पेरियोडिक फंक्शन है, और पेरियोडिक फंक्शन तो वैल्यूज रिपीट होती है ना वहां पे, तो अलग अलग एक्स के लिए वैल्यू सेम हो जाती है। तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फंक्शन को पहले 1 लाइक यदि हम उसके डोमेन, इस फंक्शन में रियल नंबर डोमेन लिया है तभी तो ये मेनी वन है ना, यदि हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इसको इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यदि इसको गौर से थोड़ा देखें, समझने की कोशिश करें इस फंक्शन को, तो नेक्स्ट यदि हम इंटरवल लें मतलब 0 के नजदीक वाला, तो -π/2 से लेके यदि +π/2 तक आप देखोगे, ध्यान से देखिए, -π/2 से लेके यदि +π/2 तक देखोगे तो sin x जो है वो -1 से लेके +1 तक की सारी वैल्यूज भी अटेम्प्ट कर लिया इसने, है ना, और कहीं रिपीट भी नहीं हुआ। यदि मैं पूछूं कि sin x = 1/2 जहां पे x की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 है, तो आप इसका सॉल्यूशन निकालो, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा, फिर ये सारे सॉल्यूशन नहीं आएंगे, फिर आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि आएगा π/6, है ना, क्योंकि आप 5π/6 की तरफ जाओगे नहीं, इतने में ही देख रहे हो। तो इसका मतलब हो गया कि sin x = 1/2 में x या कोई भी sin x = √3/2, कोई भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में यदि sin x का यदि मैं लूं, sin x = -½ sin x = -1/3, कोई भी नंबर इनके बीच में, तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। दैट मीन्स for different values of x there are different outcomes, so that means this function become, now this function f is, यदि मैं यहाँ पे -π/2 से लेके +π/2 तक इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, क्योंकि -π/2 पे -1 हो रहा है और +π/2 पे 1 हो रहा है, तो ये सारी वैल्यूज भी आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है इस कोडोमेन के अंदर, है ना। अब ये फंक्शन क्या बन गया, 1 भी बन गया, 1 फंक्शन भी है, और ऑन टू तो पहले भी था अभी भी है ना, 1 भी है, 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव बन गया। ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट अब ये देखिए, ये ग्राफ जो है वो sin x फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन कहां से कहां के बीच में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, -π/2 से लेके +π/2 में ही ये ग्राफ है। क्लियर? सो नाउ इफ यू सी दिस फंक्शन इज बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, एंड if you draw a line parallel to x-axis, then
it cut at only one point. So that is the simple checking of a function that it is 1 1 or not. And it is -1 to +1 is the range of this function. The lowest value is -1 and the highest value is +1. So it must be onto function. तो इसका मतलब हम इसका जो है वो इनवर्स अब फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे इनवर्स निकालते हैं उसको समझते हैं. तो इसका मतलब है कि यदि ये फंक्शन है इस तरीके से, तो इसका जो इनवर्स होगा वो डेफिनेटली क्या होता है, जस्ट जो इसका रेंज था इस फंक्शन का वो डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन जाने वाला है. ठीक है ना. तो इस फंक्शन f का जो इनवर्स होगा उसको हम f इनवर्स कहेंगे, और -1 to +1 इसका डोमेन होगा और रेंज होगा -π/2 to +π/2. लेकिन इसको एक सिंबल दिया जाता है ना. हम f इनवर्स x जो लिखेंगे ना, इस f फंक्शन का जो इनवर्स होगा उसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स x. तो हम कहते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 to +1 है, और रेंज क्या है, -π/2 to +π/2 है. मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यूज है वो हम -1 to +1 पुट करेंगे और आउटकम -π/2 to +π/2 आएगा. साइन x में हम एंगल पुट करते थे, ऐसे आप समझ सकते हैं. साइन x में x की जगह क्या पुट होता था, एंगल्स पुट होता था, और आउटकम जो है वो वैल्यूज आती थी, लाइक साइन π/6 1/2, साइन π/3 √3/2 है ना, साइन π/2 1. इस तरीके से वैल्यूज मिलती थी हमें, है ना. लेकिन अब हम क्या कहेंगे ना, हम इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे. अब हम क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और आउटकम में हमें क्या मिलने वाला है, -π/2 से +π/2 का वैल्यूज मिलने वाला है. मतलब उल्टा होने वाला है. जस्ट लाइक साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है, आपको पता ही है ना. अब हम कहेंगे कि ये जो साइन इनवर्स जिसको मैंने नाम दिया है, जिसको आप सिंबल के फॉर्म में आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखते हैं, आर्क साइन एक्स लिखते हैं. साइन इनवर्स एक्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज आर्क ऑफ साइन एक्स, याद रख सकते हैं आप. तो अब यदि मैं पूछूं कि इसमें 1/2 पुट करेंगे, यदि मैं पूछूं कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो π/6 होगा. क्लियर. सो दैट इज द मेन थिंग विच वी मस्ट रिमेंबर. आगे देखते हैं, इसको मैं जस्ट रब कर देता हूं और फिर कुछ आगे जो है वो ग्राफ. तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना पड़ेगा. जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो अल्फा कॉमा बीटा यदि f के अंदर है तो बीटा कॉमा अल्फा f इनवर्स में होगा. एंड ऐसा भी बताया था आपको कि ग्राफ ऑफ f इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो y = x लाइन पे f का मिरर इमेज बनता है. ठीक, ऐसा बताया था मैंने. तो यदि मैं इसको इस फंक्शन का, जैसे मैंने देखा कि ये जो साइन x फंक्शन -π/2 to +π/2 डोमेन के अंदर 1 1 है, और -1 to +1 यदि कोडोमेन ले लें तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा. ठीक है ना. -π/2 to +π/2 में मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, और ये जो है वो आपका -π/2 से लेके +π/2 तक डिफाइंड यदि है तो 1 1 ऑन टू है. तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, साइन इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे. तो f इनवर्स तो पहले आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक डिफाइन हो जाता है, -1 to +1 to -π/2 to +π/2, और f इनवर्स x फंक्शन यहाँ पे कहलाता है साइन इनवर्स x, और सिंपली यू कैन से दैट y = साइन इनवर्स x. f इनवर्स तो सिंबल है ना एक, इसको gx भी कह सकते हैं, है ना. तो y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं, जैसे मान लीजिए ये y = x लाइन है ना, सपोज दिस इज y = x लाइन. ओके, तो यहाँ पे जो है y = x लाइन जो है वो इस पे मिरर इमेज यदि हम बना दें, इधर वाला पोर्शन इधर बना दें और इधर वाला पोर्शन इधर की तरफ बना दें, तो हमारा जो साइन इनवर्स x फंक्शन का है उसका ग्राफ प्लॉट हो सकता है. तो एक बार को आप समझिए यहाँ पे कैसे हम, ये तो y = x लाइन हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मिरर इमेज देख रहे हैं, तो ये 0,0 जो पॉइंट है उसका तो मिरर इमेज y = x लाइन पे ही वो लाई कर रहा है, तो इसलिए वही होगा. ठीक है ना. तो ये पॉइंट तो फिक्स है. दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये जो पॉइंट है π/2 पे कितना आउटकम दे रहा है साइन x, π/2 पे आउटकम दे रहा है 1. तो π/2, 1 का मिरर इमेज हमें इधर देखना है, तो जस्ट इसका उल्टा 1, π/2 कहाँ होगा, तो π/2 होता है 1.57 अप्रोक्सीमेटली. तो 1 यहाँ रहा
और π/2 जो है वो करीब यहाँ होगा, तो मतलब इसका मिरर इमेज कहीं यहाँ इसका बनेगा और ये पॉइंट मान लीजिए 1, π/2 है, ठीक है। इसका मिरर इमेज समझ रहे होंगे, जितना दूर इधर होगा उतना ही इधर कहीं होगा, है ना। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर के बना रहे हैं, रफ स्केच बना रहे हैं, इट इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ। एग्जैक्ट ग्राफ के लिए तो आपको वैल्यूज ले लेकर के बनानी होती है, बट ये अभी हम बना रहे हैं। सिमिलरली जैसे -π/2 पे -1 है, साइन ऑफ -π/2 -1 होता है, तो -π/2 पे कितना आउटकम हमें मिल रहा है, -1, तो -π/2 पे -1 आउटकम देता है साइन एक्स। अब इसका मिरर इमेज, इसका यहाँ मिरर इमेज y = x लाइन पे कहाँ होगा, कहीं इधर होगा 1, अब समझ रहे होंगे -1, π/2 कहाँ होगा, तो -π/2 होता है -1.57, तो -1 कहीं यहाँ होगा और इसके जस्ट नीचे 1.57, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कहीं होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। रफली जो है मैं बात कर रहा हूँ, रफली कहीं इधर होगा, ना ही दूर होता है या इतना इधर कहीं होगा, है ना। ये 3 पॉइंट मिले मुझे, 1, 2, 3, इसको मुझे मिलाना है। और किस तरीके से मिलाना है, जैसे देखिए यहाँ पे इधर ग्राफ कैसा है, इस इधर की तरफ है, तो इसका मिरर इमेज y = x लाइन पे होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे इस तरीके से, और फिर इधर ऐसे है, तो मिरर इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा, इधर, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके का जो ग्राफ बनने वाला है वो साइन इनवर्स x फंक्शन का है। एक बार मैं इसी सेम ग्राफ को अलग से प्लॉट करके बना देता हूँ कि कैसा ग्राफ होगा। एक्चुअली अब ये पॉइंट कितना हो गया, -1, -π/2, तो डोमेन जो है वो -1 से लेके +1 तक हो गया साइन इनवर्स x फंक्शन का, और आउटकम क्या है, -π/2 से लेके +π/2 तक आउटकम आने लग जाता है साइन इनवर्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो एक बार आप देख लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ -1 ले लेते हैं, +1, ये डोमेन हो गया इस फंक्शन का, साइन इनवर्स फंक्शन का, -1 to +1, और रेंज कितना है, -π/2 to +π/2, तो -π/2 और ये ले लेते हैं +π/2, 1 पे π/2, -1 पे -π/2, 0 पे 0। और ग्राफ जो है ना वो किस तरीके से बनाया है आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक इस तरीके से ऐसे मिरर इमेज बना होगा, तो इसका मिरर इमेज और इसको मिला दिया मैंने, और सिमिलरली इसका मिरर इमेज यदि यहाँ है तो इसको ऐसे y = x लाइन के इस साइड में ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना वो y = x लाइन का, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है जो हमें पिक्चराइज करते हुए और समराइज करते हुए हम उसको समझ करके याद रख सकते हैं। सिमिलरली जितने भी फंक्शन हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सब में सेम कॉन्सेप्ट है, cos इनवर्स x हो या tan इनवर्स x हो या cosec इनवर्स x हो, सब में यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक तरीके से पीरियोडिक फंक्शन है, और उनका जो डोमेन होता है उस पूरे डोमेन में वो फंक्शन मिनिमल होते हैं, तो उनको हम रेस्ट्रिक्ट करते हुए क्या करते हैं, उनका 1 पहले क्रिएट करते हैं उसको, और फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से cos इनवर्स x निकालते हैं, फिर किस तरीके से हम tan इनवर्स x निकालते हैं। सो गो थ्रू दिस। तो cos x जो फंक्शन है ना वो भी जो है वो एक तरीके से यदि हम बात कर रहे हैं और पूरे रियल नंबर में डोमेन और -1 to +1 इसका को डोमेन लेंगे, तो ये भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। वैल्यूज आप देख ही रहे हो कि मतलब रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो ये मिनिमल होगा, ठीक है ना। सिंपल सा सेम लॉजिक हम sin x में अभी सीखे हैं कि एक लाइन खींच दें तो बहुत सारे जगहों पे ये इसको कट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस फंक्शन का जो जिसमें इसको मुझे 1 क्रिएट करना है, तो इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक, यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो इधर भी कर सकते थे, -π से लेके 0 भी कर सकते थे, है ना। बट एक्चुअली कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि पॉजिटिव वैल्यूज में आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे और इसी को हम कंसीडर करेंगे, और ये इसीलिए हमें याद रखनी होती है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई -π to 0 ले सकता है, कोई π से लेके 2π तक ले सकता है, ये सब अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो है वो cos x फंक्शन तो 1 है, बट 0 to π ही क्यों लेते हैं, बिकॉज इन द केस ऑफ 0 to π इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द थिंग्स,
आसान होता है, ठीक है ना। नंबर छोटा होगा, इधर पॉजिटिव होगा, तो आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिशियंस ने इसको इसी ब्रांच को जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच बोला, मतलब मेन ब्रांच। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यदि इस फंक्शन को मैं क्या करूं 0 to पाई में ही डिफाइंड कर दूं, बाकी हटा दूं, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात, इधर से ये जो है वो पोर्शन हटा दूं, तो ये पूरा का पूरा जो cos x फंक्शन है वो 0 to पाई डोमेन के अंदर जो है 0 to पाई डोमेन के अंदर 1 भी है और ऑन टू भी है। -1 से लेके +1 सारी वैल्यूज भी इसको मिल गई है ना, जिसकी आ गई। तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है इसको डोमेन के अंदर, और इसलिए इसका हम इनवर्स अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो इनवर्स फाइंड आउट होगा इस फंक्शन का एफ इनवर्स, वो कहां से कहां तक होगा, -1 to +1 to 0 to पाई। और इसीलिए जब भी हम एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे cos x का इनवर्स कितना होगा, cos इनवर्स x, और इसलिए हम इसको r cos x भी सिंबल के थ्रू याद रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है, cos इनवर्स x का जो डोमेन है और रेंज है, वो बिल्कुल आप याद रखिए। साइन इनवर्स x में भी डोमेन -1 to +1 होता है, बट वहां पे रेंज कितना होता है, -π/2 to +π/2, बट यहाँ पे कितना होगा 0 to पाई। मतलब आप इसकी यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, ये मशीन है जिसमें -1 से +1 की बीच की वैल्यूज पुट हो सकती है, और आउटकम कहाँ से कहाँ तक देगा, ये 0 से पाई की वैल्यू ही देगा। ये बहुत ही जरूरी है याद रखना। तो इसी बात को यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है, अब यहाँ cos x के अंदर तो आप एंगल पुट करते थे ना, आउटकम क्या आता था वैल्यू, जैसे cos π/3 कितना आ जाता था, वो हाफ है ना। लेकिन cos इनवर्स जो फंक्शन है उसमें उल्टा होता है। अब जब है वो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स फंक्शन में, f इनवर्स फंक्शन में x होगा यहाँ से फाइंड आउट, और cos इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके पाई के बीच में आने वाली है। जैसे मान लीजिए यदि मैं cos इनवर्स हाफ निकालूंगा, तो अब मैं बोलूंगा कि π/3 है, क्लियर। यदि मैं cos 2π/3 निकालता था तो वो -हाफ आता था। अब मैं पूछूंगा cos इनवर्स -हाफ, तो वो 2π/3 आएगा, क्लियर। 2π/3 आपको देखना है कि क्या और 0 से पाई के बीच का आउटकम है, तो है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज एन आंसर। लेकिन वैसे तो आपको यदि मालूम हो तो cos 4π/3 भी हाफ होता है, cos 4π/3 भी कितना होता है, सॉरी -हाफ होता है, ठीक है ना। cos 4π/3 कितना होता है, -1/2। लेकिन यदि मैं पूछूं कि cos इनवर्स 1/2 4π/3 होगा क्या, so the answer is no, this is wrong। क्यों नहीं होगा, क्योंकि this does not belongs to the range set of cos inverse function। रेंज सेट क्या है cos का, cos इनवर्स का 0 to पाई है, और 4π/3 पाई से बड़ा हो गया, ठीक है ना। 4 है ऊपर, नीचे 3 है, तो 3/1 पाई से बड़ा नंबर है ना 4π/3, पाई प्लस π/3 इज 4π/3। सो ये जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है, और समझ में भी याद रखना चाहिए हमें कि 0 to पाई में जो आउटकम होगा वही हम कंसीडर करते हैं एज ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और सिमिलरली सभी के अंदर। तो कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन यदि है, मान लीजिए फाइंड cos इनवर्स √3/2 निकालो, ठीक है ना। फाइंड cos इनवर्स √3/2, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम ना थीटा लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये कोई ना कोई तो एंगल होगा, क्योंकि cos इनवर्स जो फंक्शन है वो आउटकम देता है किसमें, एंगल में। ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा तो एंगल भी नंबर्स ही होते हैं एक्चुअली। रेडियन के अंदर जो है वो 0 to पाई, या हम जो भी नंबर की बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स ही है। रियल नंबर के थ्रू ही हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसको यदि मैं थीटा लेट कर लूँ, ठीक है ना, लेट दिस इक्वल टू थीटा, और दोनों तरफ, क्योंकि यदि ये इसके बराबर है तो इनवर्स फंक्शन है ना, यहाँ पे इनवर्स है ये, तो जैसे कि इनवर्स फंक्शन तो 1 1 होता है, तो यदि x1 x2 के बराबर होगा, x1 यदि x2 के बराबर होगा, तो cos x1 cos x2 के बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर, सिंपल सी बात है। बट यही चीज हम नहीं लिख सकते, cos x1 इक्वल टू cos x2 है, cos x1 इक्वल टू cos x2 है, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। समझिए इसको, तो क्या बता रहा हूं, यदि दो नंबर बराबर है तो उनका cos ले सकते हैं हम, लेकिन cos of x1 इक्वल टू cos of x2 है, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, बिकॉज cos 2π/3 इज ऑल्सो -हाफ एंड cos 4π/3 इज ऑल्सो -हाफ। पीरियोडिक है ना, रिपीट हो जाता है, क्लियर। चलिए ये सब तो बात की बात है।
अब यहाँ पे इसको थीटा लेट किया है, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, दोनों तरफ यदि हम cos ले लें ना तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cos थीटा जो है ना, अब आपको क्या करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट 0 से पाई के बीच का नंबर है, 0 to पाई में ही इसको लिखना है। तो 0 to पाई में cos कब √3/2 के बराबर हो जाएगा, तो आई थिंक cos 5/6 होता है √3/2, cos 30 डिग्री इज √3/2। ओके, तो ये लिख लेना है। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट जो है वो आंसर आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज थीटा इक्वल टू π/6। π/6 ही क्यों लिया, आप कहेंगे सर मैं तो cos 2π माइनस π/6 या cos ऑफ माइनस π/6 भी तो √3/2 होता है। cos ऑफ माइनस π/6 इज ऑल्सो √3/2। तो माइनस π/6 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो माइनस π/6 जो है ना वो रेंज सेट में बिलोंग नहीं करता, 0 to पाई सेट में बिलोंग नहीं करता है। कौन बिलोंग करता है, π/6 बिलोंग करता है। 0 to पाई के अंदर का ये नंबर है ये। तो π/6 बिलोंग्स टू द रेंज सेट ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। तो द आंसर इज, थीटा किसको कहा था हमने, cos इनवर्स √3/2 को। तो cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। इस तरीके से निकालने का तरीका है जिसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरा देखते हैं tan इनवर्स फंक्शन। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ग्राफ जो होता है ना cos इनवर्स x फंक्शन का, वो कैसे बनाएंगे हम लोग। cos x का जो ग्राफ 0 to पाई में होगा, ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है ना। इसी का यदि हम मिरर इमेज ले लें, ये जो पोर्शन बना हुआ है वो उसको y इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज की तरह, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा यदि f फंक्शन में है तो उसके इनवर्स फंक्शन में बीटा कॉमा अल्फा होता है, ये हमें पता है। तो ये है, देखिए cos पाई कितना होता है, -1। तो ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया जो cos इनवर्स पे भी रहेगा। पाई पे वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -1 पे कितना होना पड़ेगा, पाई। और पाई कितना होता है, 3.14 होता है। तो मान लीजिए ये रहा पाई, क्योंकि 1 से तो बड़ा ही होगा ना। तो ये वाला जो इसका इमेज इधर की तरफ नहीं बनेगा। पाई कॉमा -1 का इमेज क्या होगा y इक्वल टू एक्स लाइन पे, -1 कॉमा पाई। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, इसका इमेज है। जितना दूर ये इधर होगा उतना ही दूर y इक्वल टू एक्स लाइन पे ये भी होगा, ठीक। दूसरा बात, ये क्या है, 0 पे 1 है, तो मतलब ये पॉइंट जो है ना वो उसको हम 0,1 कहेंगे, ठीक। तो 1,0 कहाँ होगा, 0,1 तो ये रहा। तो 1,0 आप बताओ, ये तो π/2 है ना, तो 1,0 कहीं इधर होगा, ठीक है ना, 1 पे, क्योंकि π/2 का मतलब होता है 1.π/2 का मतलब होता है 1.57। तो 1 तो उससे पहले ही होगा ना। तो ये 1,0 मान लेते हैं। ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, इधर ऐसे कहीं आएगा। एग्जैक्टली बनाना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। तो हम थोड़ा सा जो है वो रफली बनाते हैं। तो इसका मिरर इमेज कहीं यहाँ होगा। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, आप खुद से समझने की कोशिश करो। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट का इमेज यहाँ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। इस पॉइंट का इमेज नहीं मिला है इसका। ये पॉइंट क्या है, π/2 पे 0 है, π/2, 0 है। देखते जाइए, π/2, 0 है। तो 0, π/2 कहाँ होगा, तो 0, π/2 कहीं इधर होगा, है ना, 0, π/2, 0, का इमेज ये रहा। अब हम बनाना इसको स्टार्ट करेंगे जब, तो हम इस तरीके का ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। आप खुद से देखिए, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, इधर ऐसे है तो इधर ऐसे रहेगा, ठीक है ना, इसी का ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यदि, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इस तरीके से होगा, क्लियर। और इसका मिरर इमेज ऐसे हो, क्लियर। तो कुछ एक जो ग्राफ हमें दिखता है मिरर इमेज के फॉर्म में, वो ये वाला दिखता है। ये रहा हमारा -1 पे cos इनवर्स -1 इज पाई, cos
इनवर्स 0 इज π/2 एंड cos इनवर्स 1 इज 0। ठीक, तो ये वाला जो लाइन आपको ब्लू कलर का जो मार्कर से बना हुआ है, वो मैंने उन सब के इमेज को, इसका इमेज यहाँ बना था तो ये एक पॉइंट मिल गया था मुझे, इसका इमेज यहाँ मिला था 0, π/2 वो मिल गया था, ये पॉइंट तो कॉमन ही था दोनों में, और इधर 0, 1 का इमेज यहाँ बना था। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ा तो इस तरीके का कुछ एक शेप जो है वो मिलता हुआ मुझे दिखा। ठीक, तो आसानी से मैं इसको प्लॉट यदि करूंगा तो एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बना रहे थे ना उसी को वाई एक्सिस पे बना करके यदि हम देखेंगे और फिर उसी को हम वहाँ पे -1 से +1 जो इसका डोमेन है उसके अंदर यदि हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ग्राफ जो है वो हमारा और रेंज जो है वो 0 to π रेस्ट्रिक्ट कर दें तो आसानी से बना सकते हैं। तो वो भी आप एक बार को जो है वो समझ सकते हैं। मतलब यही ग्राफ यदि मैं ऐसे करके बना दूं, ठीक है ना, यहाँ बना दूं ऐसे, क्या है, वाई एक्सिस पे मैंने इस बार क्या किया, एक्स की वैल्यूज को ले ली, 0, π/2, π ये सब ले लिया, -π/2, 0 है ना, -π/2 ये सब ले लिया। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि और ये ऑब्वियसली यहाँ पे अब x की जो यहाँ पे जो y की वैल्यूज ले रहे थे वो हम x की वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया ना, जस्ट इनवर्स का ग्राफ तो हमने इस तरीके से बना दिया। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो -1 से +1 में 0 से π रेंज सेट के अंदर जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो वही ग्राफ बनेगा जो मैंने यहाँ पे कुछ बताया है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का ये जो रीजन है ना, डार्क रीजन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, वही cos इनवर्स x का ग्राफ होता है। इधर वाला को वैसे भी हटा देंगे। तो ये बहुत आसानी से और भी समझ सकते हैं और ये थोड़ा लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप जो है वो ग्राफ बनाना, प्लॉट करना सीख सकते हैं। तो एक जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पाई होगा यहाँ -1 to +1 जो कि cos इनवर्स x जो फंक्शन होता है वो -1 से +1 डोमेन और 0 to π रेंज सेट में होता है। तो 0 to π इधर ही वैल्यूज होंगी और इसी में बनेगा बस। तो ध्यान रखना है π/2 ये रहा, मान लीजिए π/2। तो कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से बनाओगे आप, थोड़ा दूर हो गया है नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा ऐसे, ठीक। तो ये हमारा y = cos इनवर्स x फंक्शन है, ध्यान से देखिए और इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आप